न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। कवि गुरु काजी नजरुल इस्लाम के स्मृति चिन्ह संग्रहालय को अन्यत्र ले जाने का काजी परिवार ने किया विरोध। बराकर में विश्व हिंदू कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ने का आरोप पुलिस पर, प्रतिवाद में सड़क जाम। मुहर्रम के अवसर पर आसनसोल शिल्पांचल में कईयों ने दिखाए अखाड़ा में अपने कर्तव्य। सोमवार को पश्चिम बर्धमान जिले के जमुड़िया अंतर्गत चिरुलिया ग्राम, जो कि कवि गुरु काजी नजरुल इस्लाम की जन्मभूमि है, वहां कवि के परिजनों की ओर से एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नजरुल इस्लाम के परिजनों और स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर अपनी चिंताओं को मीडिया के समक्ष रखा। परिजनों ने आरोप लगाया कि चिरुलिया स्थित नजरुल संग्रहालय में रखे गए काजी नजरुल इस्लाम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण स्मृति चिन्ह, जिनमें उनके इस्तेमाल किए हुए वस्त्र, पांडुलिपियां, फोटो और अन्य निजी सामग्री शामिल है, उन्हें सरकार और आसनसोल काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी द्वारा संग्रहालय से हटाकर यूनिवर्सिटी परिसर में स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है। पूर्वजों ने ये आशंका जताई कि यदि ऐसा किया गया तो चिरुलिया ग्राम का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जन्मभूमि ही काजी नजरुल इस्लाम की असली पहचान है और उनकी यादें, धरोहरें और स्मृति चिन्ह इसी गांव में रहनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस ऐतिहासिक स्थल से प्रेरणा ले सके। कवि के परिजनों ने सरकार और संबंधित विश्वविद्यालय प्रशासन से अपील की कि वे स्मृति चिन्ह को चिरुलिया से ना हटाएं और इस गांव की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस दिशा में जल्द कोई स्पष्ट और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो गांववासी और नजरुल परिवार आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय बुद्धिजीवियों और संस्कृति प्रेमियों में भी चिंता का माहौल है। वे चाहते हैं कि चिरुलिया की ऐतिहासिक पहचान को बचाया जाए और कवि गुरु काजी नजरुल इस्लाम की यादों को उसी स्थान पर सम्मानपूर्वक सुरक्षित रखा जाए जहां उनका जन्म हुआ था। नमस्कार, আমি সোনালী কাজী, কাজী নজরুল ইসলামের ছোট ভাই কাজী আলী হোসেনের নাতনি। আমরা চিরুলিয়ায় বড় হয়েছি এই নজরুল একাডেমি ছত্রছায়ায়, এবং আমার বাবা জ্যাঠারা বহু কষ্ট করে এই চিরুলিয়া থেকে কবিতীর্থ চিরুলিয়ায় রূপান্তরিত করেছে। তো সেই নামাঙ্কিত কবিতীর্থ চিরুলিয়া আজকে আমরা কার হাতে তুলে দিলাম, সেটা আজকে প্রশ্নচিহ্ন সবার, প্রত্যেকটা মানুষের কাছে। তো আমরা সেই মানুষের কাছে আজকে দাঁড়িয়েছি যে আমরা তো আমার বাবা জ্যাঠারা বা আপামর জনসাধারণ চুরুলিয়ার যে তৈরি করেছিল হসপিটাল, লাইব্রেরি, আমরা যেখানে বসে কথা বলছি, মহাবিদ্যালয়, স্কুল, রাস্তাঘাট, জল সবই করেছেন। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে ওনাদেরও বয়স হচ্ছিল, ওনারা ভেবেছেন যে আমরা আর কতদিন থাকবো, তো একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি, সেখানে আমরা একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই নজরুল একাডেমিকে আমরা স্বত্বাধিকার দেব। এই মর্মে কাজী রেজাউল করিম সম্পাদক থাকাকালীন আমরা যারা 19 জন কমিটিতে ছিলাম, আমি সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলাম, কাকা সহসভাপতি ছিল, আমরা সবাই মিলে একটা আলোচনা করে চুরুলিয়ার সমস্ত মানুষদের সঙ্গে নিয়ে আমরা একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে দিয়েছিলাম এই নজরুল একাডেমিকে। ভেবেছিলাম যে অনেক কিছু হবে, আমরা এখনও স্বপ্ন দেখি যে চুরুলিয়া একদিন নজরুল তীর্থ গড়ে উঠবে, কিন্তু তার 125 জন্মদিন পেরিয়ে গেল, তার জন্ম ভিটা যেখানে নারীপোতা আছে কাজী নজরুল ইসলামের, যেটা নজরুল একাডেমি এখন, তো সেই জন্মভিটাটা রং পর্যন্ত
এনারা করেনি। এই বছর এই নজরুল মেলাকে ঘিরে প্রচণ্ড রকম মানুষের মনে একটা প্রশ্নচিহ্ন এসে গেছে যে এটা হচ্ছে গ্রামীণ মেলা, যেখানে সমস্ত মানুষেরা, গ্রামের মানুষরা প্রাণ খুলে হাসবে, মেলা দেখবে, এবং প্রত্যেকটা বছরের শেষে এই মেলাটা যখন হয় তারপরে সারা বছর তারা আনন্দ করবে পরের বছর মেলাটা দেখার জন্য। এই মেলাটাকে একটা কর্পোরেট মেলায় পরিণত করেছে এই কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটির। কিন্তু কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি তো কোনো মানুষ নয়, এটা একটা প্রতিষ্ঠান। যে মানুষগুলি রয়েছে সেই মানুষগুলি এটিকে কলুষিত করার চেষ্টা করছে। নজরুল একাডেমির এখন কোনো অস্তিত্ব নেই। নজরুল একাডেমির যে জিনিসগুলো ছিল, বাড়ি বা মিউজিয়াম যা ছিল, সেগুলো এখন ইউনিভার্সিটির সম্পত্তি। এবার আপনারা জানেন যে চুরুলিয়া অনেকদিন ধরেই অবহেলিত ছিল। আমরা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে আমাদের ওখানকার একটা রিনোভেশনের কাজ চলছে, এবং অলরেডি এটার জন্য প্রায় 1.5 কোটি টাকা স্যাংশন হয়েছে, এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট এই পুরো ডেভেলপমেন্টটা করছে। এবং চুরুলিয়া একদিন অবহেলিত হওয়ার পর এটা চুরুলিয়াবাসীর কাছে একটা বড় সুযোগ ছিল যে চুরুলিয়াকে আবার বিশ্বমানের জায়গায় তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এর সাথে সাথে আমরা জানেন যে প্রমিলা মঞ্চ ওখানে আছে। প্রমিলা মঞ্চের অলরেডি ডেভেলপ হয়ে গেছে, এবং এখন যেটা বাকি রয়েছে আমাদের মিউজিয়াম এবং কবির যেটা বাস্তুভিটে, তো এগুলো আস্তে আস্তে আমাদের রিনোভেশন হবে। এর মধ্যে মিউজিয়ামে যে কবির আমাদের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি এবং ব্যবহৃত জিনিসপত্র রয়েছে, সেগুলো সংরক্ষণ করা এবং সেগুলোকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আমাদের ওগুলোকে এখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসতে হচ্ছে। তার একটাই কারণ ওখানকার মডিফিকেশন এবং রিনোভেশনের কাজটা হবে। আবার কাজ শেষ হলে সেটা তো মিউজিয়ামই হবে, মিউজিয়ামে তার অন্য কিছু রাখা যাবে না, মিউজিয়ামে তো ওই জিনিসগুলোই থাকবে। বরং মিউজিয়ামটাকে আরও বিশ্বমানে করে তোলার চেষ্টা চলছে। সেগুলোকে আবার নিয়ে আসা যাবে, বা সেগুলো আর্কিটেক্টরা যারা ডিজাইন করেছেন বা মিউজিয়াম এক্সপার্ট যারা আছেন তারা দেখবেন যে আরও কীভাবে ভালো করে করা যায়। আমরা আরও ভালো করে এই চুরুলিয়াকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে দিতে চাইছি। আমরা রিসেন্টলি জানেন যে আমরা ইউকে থেকে আমাদের ইউকে ডিজিটাল লাইব্রেরি থেকে একটা প্রজেক্ট পেয়েছিলাম। সেখান থেকে আমাদের যে পাণ্ডুলিপিগুলো রয়েছে সেগুলো ডিজিটাইজড হয়ে আমাদের সেই ডিজিটাল লাইব্রেরির এতে রয়েছে, ওয়েবসাইটে রয়েছে, এবং সারা বিশ্বের লোক এটা দেখতে পাচ্ছে। এবং আমরা জানেন যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা বছরই নজরুল নিয়ে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আমরা সেমিনার, কনফারেন্স বা বিভিন্ন রকম কবির নিয়ে প্রোগ্রাম আমরা করে থাকি। সুতরাং নজরুলকে নিয়ে আমরা সারা বছরই লেগে আছি। নজরুল কারো নিজের নয়। এখন কিছু জন যারা বলতে চাইছে, আমার যেটা মনে হয় তারা সম্পূর্ণ তাদের ফ্যামিলির একটা পরিচয় দিয়ে নিজেদের এই জিনিসগুলোকে কুক্ষিগত করে রাখার জন্য চাইছে। কিন্তু নজরুল কারো ফ্যামিলির একার নয়, নজরুল সবার, এবং সারা বিশ্বের লোক নজরুলকে নিয়ে কাজ করছে। মানে মিউজিয়াম তৈরি হয়ে গেলে আবার ওখানেই চলে যাবে? অবশ্যই, ওটা তো নজরুলেরই মিউজিয়াম, নজরুলেরই তো জন্মভিটে। আমরা তো ওটার জন্যই উদ্যোগ হয়েছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেমন উদ্যোগ হয়েছে, আমরা তো উদ্যোগ হয়েছি। कुल्टी पुलिस द्वारा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सोमवार को कुल्टी प्रखंड विश्व हिंदू परिषद ने बिगुनिया मोड़ के पास धरना प्रदर्शन कर बराकर बस स्टैंड के पास पथ अवरोध भी किया गया। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष श्री राम सिंह ने बताया कि रविवार की रात को मुहर्रम का अखाड़ा बेगुनिया मोड़ की ओर जा रहा था। इस दौरान प्रत्येक वर्ष के भांति हम लोग बेगुनिया बाजार के शिव मंदिर रोड के पास खड़ा होकर अखाड़ा में शामिल लोगों से राम सलाम कर रहे थे। इस बीच कुल्टी थाना के 2 अधिकारी आए और बिना किसी वजह के चंदन नाम के युवक को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका विरोध करने पर हम लोग के साथ भी पुलिस धक्का मुक्की करने लग गए, जिसका आज हम लोगों ने विरोध किया तथा दोषी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की गई। बेगुनिया मोड़ पर धरना प्रदर्शन के बाद कुल्टी थाना के समक्ष भी धरना प्रदर्शन किया गया और कुल्टी थाना के आईसी इंचार्ज कृष्ण नंदू दत्ता के बुलावे पर विश्व हिंदू परिषद के 10 सदस्यों के साथ बैठक हुई, जहां बराकर फाड़ी प्रभारी सुकांत दास उपस्थित थे। जहां दोनों पक्ष के बीच समझौता होने के बाद मामले का निपटारा हुआ। इस दौरान विश्व परिषद अमित सरकार, हिंदू जागरण मंच राकेश गुप्ता, विनय यादव, पिंटू कुमार, रवि सिंह, कुल्टी नगर आरएसएस प्रमुख राजीव प्रसाद, जयप्रकाश रवानी, राजा प्रसाद, वीरेंद्र सिंह, कृष्णा, पिंटू सुहासरिया, देबू महतो, अमर, राहुल, बबलू, अमर तांती समेत कई लोग उपस्थित थे। वहाँ पर किसी से कुछ बैर नहीं, अपना घर में, अपना शिव मंदिर के सामने में हम लोग का
रैली का एक आयोजन किया जा रहा है जो आपका रामनवमी के लेकर के उसके लेकर के बैठक था। तो बैठक करके हम लोग बोले 10-15 आदमी आकर वहाँ खड़े थे। सारा रैली निकल गया, सब में सब कोई अपना एंजॉय कर रहा था। उसके बाद में जब लास्ट में जब सब कोई चला गया था, उसके बाद में आकर करके 2 ठो प्रशासन के अधिकारी थे जो नए हैं, जिनको हम नहीं जानते, वो आकर के हमारे दो लड़का को लेकर के धक्का मुक्की किए। धक्का मुक्की करने के बाद में जब हम वहाँ गए तो हमको भी धक्का मार करके वहाँ से हटाए। ऐसा क्यों किए? वो ये शिव मंदिर के सामने हुआ था, सिद्धेश्वरी मंदिर के सामने हुआ था। वहाँ हर साल खड़ा रहता है, सब कोई हमेशा जब भी होता है हम लोग सेवा करते हैं। पुलिस का भी प्रशासन को हम लोग हमेशा सपोर्ट किए, हर किसी को सपोर्ट किए। अगर यहाँ कोई बराकर में कोई घटना करता है, हमारा विश्व हिंदू परिषद का सारा लड़का वहाँ पहुँच जाता है। आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत कार्यरत हेल्थ वर्करों ने सोमवार को नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग सुकांत मैदान दफ्तर के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने आरोप लगाया कि उनके साथ न केवल अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, बल्कि उन्हें बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है। प्रदर्शनकारी हेल्थ वर्करों ने बताया कि वे वैक्सीनेशन, टीकाकरण और इंजेक्शन देने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को निष्ठा से करती है, लेकिन इसके बावजूद ना तो उन्हें सम्मान मिल रहा है और ना ही आवश्यक सुविधाएं। उनका कहना था कि दफ्तर में उनके बैठने तक की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। बारिश के दिनों में वे भीगने को मजबूर है और जब वे कहीं बैठने की कोशिश करती है तो अधिकारियों द्वारा उन्हें अपमानित करते हुए बाहर निकाल दिया जाता है। स्वास्थ्य कर्मियों ने ये भी मांग उठाई कि उन्हें उनकी योग्यता और कार्य के अनुरूप उचित वेतन दिया जाए। इसके अलावा कई तरह की सरकारी सुविधाएं और कर्मचारी अधिकार जिनके वे हकदार हैं, उनसे वंचित रखा गया है। प्रदर्शन के दौरान दीपा पाल हेल्थ वर्कर महिला ने कहा कि वे लंबे समय से इस तरह की उपेक्षा झेल रही है, लेकिन अब उनका सब्र टूट चुका है। यदि जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस विषय पर आसनसोल नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक गांगुली ने कहा कि हमें इस तरह की समस्या से स्वास्थ्य कर्मियों ने अवगत कराया है। हम लोग जल्द उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे और अपने उच्च अधिकारियों को भेज देंगे। उसके আমরা স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়েছিলাম, আজ সেই এফটিএসরা আজ আমরা কোথায় পড়ে রইলাম? আমরা বঞ্চিত হলাম রাস্তায়। আজ আমাদের অবস্থা হচ্ছে রাস্তায়। এফটিএসরা এই বৃষ্টির মধ্যে এই যে ছাতা এইখানে দাঁড়িয়ে আছি, একটা জায়গা নেই, আমাদের বসার জায়গা নেই। আমরা ওখানে বসেছিলাম একদিন, আমাদেরকে মন্ডল ডক্টর এইচ মন্ডল সোমনাথ মন্ডল আমাদেরকে বললেন গেট আউট, বেরিয়ে যান এখান থেকে। যে ডেকেছে সেখানে কেন এই দ্বিচারিতাগুলো আমাদের সাথে কেন হচ্ছে? কেন আমাদের মাইনে বৃদ্ধি হচ্ছে না? কেন বলা হচ্ছে যে ফাইল আটকে আছে? কেন বলা হচ্ছে কোথায় ফাইল আটকে আছে সেই জায়গাগুলো আপনাদের দেখাতে হবে না? কেন আমরা ঠিক মতন কাজ করে সময় মতন টাকা পাচ্ছি না? কেন পাচ্ছি না? এমআরভিসি হচ্ছে, একটা মিজেস ভ্যাকসিন দিচ্ছি, সেটা দিনের পর দিন হয়ে যাচ্ছে, আমরা কোনো রকম ভ্যাকসিন কোনো রকম টাকা পাই না। কেন হয় এগুলো আমাদের সাথে? কাজ করিয়ে দিচ্ছেন, আজকে বন্ধুতে বিভেদ লাগিয়ে দিচ্ছেন, একে পাঠিয়ে দিচ্ছেন ওই জায়গায়, ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন ওই জায়গায়। কেন করছেন? ফাইলের কাজ কবে থেকে করে এসেছি, 2021, 22, 23, কোথায় টাকা? সেই টাকা কোথায়? কেন দেওয়া হচ্ছে না? ফার্স্ট ইয়ার সুপারভাইজার এরা আমাদের মূলত ভ্যাকসিনেশনের কাজটা করে থাকে এবং ওরা ভ্যাকসিনেশন ছাড়াও আমাদের অন্যান্য কাজকর্ম হেলথের যা আছে ফিল্ড লেভেলে আশাকর্মীদেরকে দেখাশোনা করা থেকে আরম্ভ করে ইউপিএসসি সব কাজই ওরা করে থাকে, কিন্তু মূলত ভ্যাকসিনেশনটা করে। তো এই ভ্যাকসিনেশন নিয়ে ওদের কিছু গ্রিভ্যান্স হয়েছে, ওদেরকে কোথায় ডিপ্লয়মেন্ট করা হয়েছে কুলটি অঞ্চলে, সেখানে ওদের যেয়ে পরে কাজ করার ব্যাপারে ওদের কিছু অসন্তুষ্টি আছে। এছাড়া আরও অন্যান্য কিছু কিছু ইস্যু আছে, সেটা বোধহয় ওরা ডক্টর মণ্ডলের কাছে এখন গেছে সেই ব্যাপারে। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best-in-class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us.
फेयर एजुकेशन पॉइंट, सतैसा बस स्टैंड नियर माइंड रेस्क्यू स्टेशन, सीतारामपुर। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। रविवार को मुहर्रम के पर्व के अवसर पर आसनसोल में कई अखाड़ों ने अपने जुलूस के दौरान प्रभावशाली प्रदर्शन कर लोगों का ध्यान खींचा। जेटी रोड समेत शहर के विभिन्न हिस्सों में अखाड़ों की मौजूदगी ने माहौल को श्रद्धा और साहस से भर दिया। मुहर्रम के इस खास अवसर पर कई सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों की ओर से श्रद्धालुओं के लिए कैंप लगाए गए। इन कैंपों में पानी, शरबत और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं प्रदान की गई। बेहतर सेवा देने वाली कमेटियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर राज्य के कानून मंत्री मुलाई खटक, आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय, डिप्टी मेयर वसीमुल हक एवं अभिजीत खटक, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी और मेयर परिषद सदस्य गुरदास चैटर्जी सहित अन्य पार्षदगण भी उपस्थित थे। सभी ने मुहर्रम के शांतिपूर्ण आयोजन और सामाजिक सौहार्द को सराहा। का जो शहर आसनसोल, ये भाईचारा का शहर है। हम लोग बोलते हैं कि आसनसोल इज सिटी ऑफ ब्रदरहुड। भाई से भाई का जो दोस्ती होता है, तो आसनसोल भी भाईचारा का शहर है। यहाँ सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा भाषी का आदमी लोग रहते हैं। और हम लोग का खुश नसीबी है कि हम लोग काली पूजा की भी धूमधाम से मनाते हैं, दुर्गा पूजा भी धूमधाम से मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं, मुहर्रम भी मनाते हैं, एक्समस भी मनाते हैं। और गुरुद्वारा का गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन भी मनाते हैं, गुरु नानक का जन्मदिन भी मनाते हैं। जितने भी हम लोग का यहाँ पर पर्व होता है, त्योहार होता है, हम लोग आसनसोल में रहने वाले सभी हम लोग हाथ से हाथ मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर इसको सफल करते हैं। मुहर्रम के अवसर पर शनिवार की रात जमुड़िया में अखाड़ों की जबरदस्त धूम देखने को मिली। पूरे इलाके में गम और जोश का अद्भुत संगम देखने को मिला। ताजियों के जुलूस के साथ जब अखाड़े निकले तो हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर जमा हो गए। करतबबाजों ने एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब दिखाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अखाड़ों में युवाओं ने लाठी चलाना, आग के गोले से खेलना व डंडों से करतब और अन्य पारंपरिक युद्ध कलाओं का प्रदर्शन किया। खासकर बच्चों और युवाओं ने अपनी प्रतिभा से लोगों का दिल जीत लिया। हर अखाड़े की अपनी एक अलग पहचान थी और उन्होंने अनुशासन के साथ अपने प्रदर्शन किए। मुहर्रम के इस मौके पर पूरी जमुड़िया क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। स्थानीय प्रशासन ने भी रूट डाइवर्सन और भीड़ प्रबंधन की पूर्व तैयारी कर रखी थी। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।